Hello. Okay. Hello. Now, can you hear me? All of you can hear me now? Yes, ma'am. Okay. So, in the last few sessions, we had seen Yes. the ways of raising capital, and then we had seen different type of products which are used by companies to raise funds, and we had also seen from the investor points of view how he can use his idle money, what are the risks associated. uh, so today we're going to see financial statements, or how do you know about the financial standing of a company. Now, out of this, some of the statements are mandatory. That means they are required by law, especially for public limited companies or companies listed on the stock exchange, the Security Exchange Board of India, and the Stock Exchange and the Companies Act mandate that these financial statement be prepared and provided to the shareholders. So let us look at what are these and what are the information we should look at when we are trying to analyze the finance of a company. So before that, whatever we have learned in the earlier sessions, if you have some questions or you want to discuss something, we can start with that. We had agreed that we will have a quiz today. I don't know how many of you are prepared. Did you go through the study material? Did you revisit it? Anyone? Yes, ma'am. Okay. So only, who's it? Who said yes? Prachi. Okay, so only Prachi went through it. Nobody else. क्या क्या 2 दिन? मैम कुछ क्वेश्चंस भी थे एक दो. So very good. Now we will discuss. So this is the best way of learning. Yes, ma'am. If you have questions, that is the best way of learning. So just give me 2 minutes. I'll just let some people in and then we will start. Just give me a moment. Okay, yes, Prachi, go ahead, ask your questions. मैम ये फ्री फ्लोट फैक्टर मैम पूछना था, क्या होता है? Free float, free का मतलब कि there is no restriction. Okay, so free float is used in calculation of market capitalization. Now, as I told you, market capitalization is the total money in the market for the company. तो कैसे निकालेंगे? It is very different from the books of the company. Now, market capitalization is calculating by multiplying the market price, which changes every day, by the number of shares issued by the company. अब when the company issues shares, उसमें कुछ उसने ऐसे shares भी issue किए होते हैं, सर फॉर एग्जांपल promoters को issue किए हैं. अब promoters को जो share issue किए हैं वो promoters का restriction होगा कि वो मान लो 3 साल तक नहीं बेच सकते. Employees को issue किए हैं तो restriction होगा कि आप 4 साल तक नहीं बेच सकते. तो इसको हम नहीं लेते हैं for calculation of market capitalization. जब हम बोलते हैं free float market, so rather than taking the number of shares issued by the company, we take the number of shares available freely in the market. ठीक है, तो उससे आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑब्वियसली थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. Okay, so that is how market capitalization is calculated. It is nothing, it's a very simple thing. It basically tells you कि कंपनी का कितना पैसा मार्केट में. तो लेने का सिंपल सा फॉर्मूला है, शेयर प्राइस क्या है और कितने शेयर्स फ्रीली अवेलेबल हैं. That is what market capitalization is. मैम जैसे कि एक कंपनी का 55% इश्यूड शेयर है, तो मैम फ्री फ्लोट फैक्टर 0.55 हो जाएगा. हाँ, मतलब जितने शेयर्स फ्रीली अवेलेबल हैं. फ्री फ्लोट का मतलब यही है जितने की फ्रीली अवेलेबल, कितने बाय और सेल कर सकते हैं. दैट इज व्हाट फैक्टर मतलब कि उसको पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना. हाँ, मतलब 1 होगा तो सारे अवेलेबल है, 0.7 होगा तो 70% है, 0.5 होगा तो 50% है. ओके मैम. So that means जहाँ पे 0.7 है, that means कि 30% of the shares are restricted for buying and selling. That is what it is. It means free float factor. ठीक है.
मैम सेकंड क्वेश्चन था कि रीट मैम पढ़ाया था आपने. रीट, यस मैम, रियल स्टेट मैम कंपनी अच्छा, थी रियल जिसमें. एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. यस मैम. ओके. हाँ, तो दीज आर लाइक म्यूचुअल फंड्स ना. म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं, हमने देखा है कि इट कैन इन्वेस्ट इन वेरियस काइंड ऑफ एसेट क्लासेस. एसेट क्लासेस अभी तक सबको समझ में आ गया होगा. कैन समबडी एक्सप्लेन एसेट क्लासेस? एसेट क्लासेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट क्लास? एनीवन? मैम वो जैसे कि मैम जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल स्टेट, कमोडिटीज, यही सब क्लासेस मैम होती हैं करेक्ट, जैसे. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग एसेट क्लासेस हो सकते हैं. एक मिनट. हाँ, शुभम इज ट्राइंग टू जॉइन इन. हाँ, तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. इंडिया में अभी लाइक वेरी रिसेंटली सेबी हैज अलाउड mutual funds to invest in real estate also. तो क्या करेंगे? It will work just like a mutual fund. What they will do, they'll collect money from various people and then invest in the real estate. तो उनको हम real estate investment trust कहते हैं. So they are entities which invest in the real estate on behalf of various investors. ओके मैम. मैम ये एक था कि न्यू पेंशन स्कीम जो पढ़ी थी NPS. मैम हम लोग ने, इसमें जो हमें इसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2. Tier 1 and Tier 2. तो Correct. मैम इसमें क्या कहते हैं जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है मैम, ये उसमें नहीं होता ना, इसमें टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिलता है ना इसके इंटरेस्ट में. हाँ, राइट. इसमें इंटरेस्ट एक्चुअली नहीं मिलता है इन द सेंस कि आपका कैप इट इज द profit which you get, is you will get it only at the time of retirement. मैम इसमें 2 टियर होते हैं ना. पहला होता है हाँ. कि हम पैसे जमा करते रहते हैं 60 इयर्स ऑफ एज तक, एंड उसके बाद हमें पेंशन मिलता है. करेक्ट. एंड टियर 2 में होता है कि हम किसी रियल उसमें पैसे देते हैं तो वो किसी किसी में भी इन्वेस्ट उसमें इन्वेस्ट करते कर हैं, सकते हैं. हाँ. लंप सम अमाउंट हमको मिलता है लास्ट में. हम्म. तो मैम मतलब इसमें टैक्स में कोई रिलीफ नहीं होता है. टैक्स में रिलीफ होता है ना, अगर आप टीयर 1 में मतलब टीयर 1 या टीयर 2 किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1.5 लाख का जो सेक्शन 80C में मैंने आपको टैक्सेशन बताया था ना, वो इसमें रहता है. और अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करो तो 50,000 का एडिशनल आपको ये मिलता है टैक्स बेनिफिट. ओके मैम. और मैम सिक्योरिटाइजेशन में मैम ये होता है कि हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं. ना, नहीं, सिक्योरिटाइजेशन इंश्योरेंस नहीं हुआ. सिक्योरिटाइजेशन मींस हाउ यू आर सिक्योरिंग अ लोन. सिक्योरिटाइजेशन हमने किस में देखा था? सिक्योरिटाइजेशन हमने देखा था एसेट बेस्ड सिक्योरिटी में. यस मैम. राइट. तो सिक्योरिटाइजेशन वुड मीन that you are taking various kind of debt. तो हमने देखा था सिक्योरिटाइजेशन कैन बी इन एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज और इन मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज. तो उसमें क्या है कि आपके पास ऑलरेडी आपने एक लोन दिया हुआ है जो सिक्योर्ड लोन है. राइट. इस लोन के ऊपर आप इससे पैसा जनरेट करना चाह रहे हो. ठीक है, तो इससे पैसा कैसे जनरेट होगा कि जो आप इसके ऊपर जो आप लोन लोगे उसको आप सिक्योर कर रहे हो बाय द रेगुलर पेमेंट the earlier debt will offer you. So that is securitization. Okay ma'am. So it is like to define, you can say it is a type of financial practice where contractual debts, मतलब debts, जो बैंक के साथ जो debts होते हैं वो they are converted into a cash flow. तो बैंक के पास इसका पैसा आ रहा है, बैंक क्या करता है, ये किसी और को ट्रांसफर कर देता है, saying that this money is coming instead of me taking it, you take this money. So this process is known as securitization. Okay ma'am. Anyone else? सिर्फ प्राची ने पढ़ाई की और किसी ने पढ़ाई नहीं की है? पीछे अभी फाइनेंशियल सिस्टम में हूँ मैं. हाँ, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या पूछना है आपको? नहीं मैम, पूछना नहीं है मैम, मैं ये कह रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं पूछ लूंगी आपसे. अच्छा, ठीक है.
एनीवन एल्स? और जिन लोगों को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल स्वाति, शबनम, अभिनव, आपने भी काफी सेशंस मिस किए हैं, जुबैर आपने भी काफी सेशन मिस किए हैं, कलश एंड सुरेंद्र ज्वाइन टुडे ओनली. तो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू यू इज टू गो थ्रू whatever we have covered, और जो आपको समझ नहीं आए वो आप जो है वी कैन डिस्कस इट. डिस्कस करने से क्या होता है, आपका डाउट तो क्लियर होगा, साथ में बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा. सो जिसने जितना क्वेश्चंस प्राची ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा, तो प्राची के तो डाउट्स क्लियर हुए ही, साथ में बाकी लोगों को भी शायद बेहतर समझ में आया हो. राइट? मैम यस. मैम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बता दीजिए. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो का क्या मतलब है? पोर्टफोलियो इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब मैनेजमेंट क्या है? पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग? यूर इन्वेस्टिंग टू गेट रिटर्न. पर जैसे हमने देखा कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, राइट? अब ये दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं. इट्स नॉट दैट कि आप गए और आपने सिक्योरिटीज खरीद ली और आपका काम हो गया. तो इसी प्रोसेस को हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं. और क्योंकि इट इज अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस, रादर देन डूइंग इट देमसेल्फ, rich individuals try to get it done through professionals, right? So for example, जब आपके घर में मेहमान आते हैं, तो usually what you do, your mother cooks. ठीक है. पर मान लीजिए कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए एंड यू डोंट वांट एनीथिंग टू एनीथिंग टू गो रॉन्ग, तो आप क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ योर मदर कुकिंग, मे बी यू विल आउटसोर्स इट टू सम पर्सन, राइट? तो आप केटरर लगा लोगे. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम भी वही है. अगर आपके पास पैसा है, आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, उसका रिस्क और रिटर्न देख सकते हो, तो वेरी गुड. बट इफ यू डोंट हैव द टाइम एंड द नॉलेज ऑफ डूइंग इट, you hire professionals to manage that for you. That is portfolio management. Portfolio is nothing but combination of all your investments. So investment में क्या क्या investments हो सकते हैं? हमने देखे थे ना investment classes, क्या क्या हो सकते हैं? Anybody would like to tell me what are different kind of investment classes? क्या क्या? मैम इक्विटी होती है, फिक्स्ड हाँ. असेट्स होती हैं, Correct. कमोडिटीज होते हैं, Correct. and commodities derivatives. Yeah. So सेविंग हाँ, असेट्स right, होते right, हैं. right, right. तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है वो यही करते हैं, दे मैनेज द पोर्टफोलियो और द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द कस्टमर. सो दे आर द प्रोफेशनल्स हु मैनेज दिस फॉर द कस्टमर. सो वो उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं. और ये क्योंकि इट इज द फीस इज वेरी हाई, सो इट इज सूटेड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. सो अगर आप इंडिया में पीएमएस लेना चाहेंगे, तो आज के डेट में यू विल हैव टू shell out 50 lakh rupees. So जो लोग के पास 50 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 50 लाख रुपीज इन एन एनपीएस. So जिसके पास 50 लाख है, he wants to get professionals to manage it, he will take PMS. Ma'am, what is credit default swap? Credit default. Now credit का मतलब क्या है? Credit financial terms में what does credit mean? Ma'am, credit means किसी को lend करना money. Yeah, credit default means that आपने किसी को पैसा दिया है, you have lent some money and that person is not returning that money. ठीक है. So वो हो गया credit default. Swap क्या है? Swap is exchange. ठीक है. अब क्या है, अगर आपने किसी को लोन दिया है, तो there's always always a possibility कि he does not return the money, right? तो इसमें क्या करते हैं, so what people do is they try to exchange it. So जिसके ऊपर क्रेडिट रिस्क है, ये इसको he tries to मेक इट मोर सिक्योर. तो मैंने किसी को उधार दिया है, अब वो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता. So what I'll do is I will swap it for with some other person, right? So for example, I get a buyer to buy this. I'm ready to
exchange it with that person. So that is the credit swap. So the जिसके ऊपर credit risk होता है, he tries to sell it to a risk buyer. तो हमने जैसे डेरिवेटिव, स्वैप भी एक डेरिवेटिव है ना, जो डेरिवेटिव में हमने देखा कि कुछ लोग स्पेकुलेटर्स होते हैं डेरिवेटिव में, और कुछ लोग आर ट्राइंग टू मैनेज देयर रिस्क. सो जो जिसके ऊपर क्रेडिट रिस्क है, he tries to find a buyer who will take over this risk from him. So that is a credit default swap. So what I'm trying to do is I'm trying to minimize the incident of credit risk. Credit risk मतलब जो मैंने पैसा दिया है वो मेरा पैसा अगर नहीं आया, that is the credit risk. So I will try to sell it to some other person who is ready to speculate or who is ready to take this risk. So that is credit default swap. मैम जैसे कि हमने एक बॉन्ड खरीदा और मैम जैसे शेयर लिया, तो मैम अगर हमें लग रहा है कि उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे और मेरा पैसा वापस नहीं होगा, तो हम किसी और को उसको दे देंगे, मतलब उसी टाइम पे. ये हो सकता है. हाँ हाँ, राइट. मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये रिस्क में पड़ा था री इन्वेस्टमेंट रिस्क. हाँ, री इन्वेस्टमेंट रिस्क. यस मैम, ये क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आपको वापस इन्वेस्ट करना है. तो फॉर एग्जांपल आपने एक बॉन्ड लिया है, ठीक है, आपने बॉन्ड तो ले लिया, पर अब जो है आपने जब ये बॉन्ड लिया तो अगर ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जब आप एफडी करते थे वो आज से 10 साल पहले, तो उनको इंटरेस्ट रेट क्या मिलता था? 10% मिलता था, 9% मिलता था, ठीक है. बट उन्होंने 10 साल पहले वो एफडी की, आज वो मैच्योर हुई, उनको पैसा तो मिल जाएगा, पर इस पैसे का वो लगाएंगे कहाँ पे? क्योंकि आज के डेट में 10% देने वाला कोई भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क है. सो द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू इन्वेस्ट योर मनी at the at the interest rate which you had earlier is the reinvestment risk. Reinvestment मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसको आप उतने ही इंटरेस्ट रेट पे आगे नहीं लगा पाएंगे. दैट इज द reinvestment risk. Anything else? एनपीएस इन्वेस्ट ऑप्शन, इसका क्या मतलब? एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो एनपीएस जैसे हमने देखा न्यू पेंशन प्लान. अब इसमें दो टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2. अब टीयर 2 में जब आप पैसा लगा रहे हैं उसमें यू कैन डिसाइड कि आप किस एसेट क्लास में पैसा लगाएंगे, ठीक है. तो एसेट क्लासेस उसको वी कैन अंडरस्टैंड बाय द एक्रोनिम ECG. E is for equity, C is for corporate debt, G is for government security. तो NPS gives me the option कि मैं इनमें से कोई भी asset class choose कर लूं. So that is what it is. So I have a choice to select the asset class in which I want to invest the money through NPS. Thank you. Okay. Anything else? So can we proceed with a new topic now? यस मैम. Okay. So good. ऐसे आप पढ़ो और आपके डाउट्स आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और किस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग है. सुरेंद्र, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ. यू हैव समथिंग टू से? कुछ कहना है आपको सुरेंद्र? नो मैम. ओके ओके. तो माय रिक्वेस्ट इज, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का क्लास होता है आपके पास, यू हैव द एंटायर डे, तो प्लीज अपना व्हाट एवर वी कवर इन द क्लास उसको जाके पढ़िए. जो नहीं समझ में आए वो क्लास में डिस्कस करिए. It will not only help you, but it will also help me in understanding your level of understanding, and it will also help others to understand better. ठीक है, तो ये प्रोसेस करते रहिए, and so this our interaction will become more productive. So usually अगर आप ये Zoom classes वगैरह देखो तो it's one way sessions where only the host is speaking, which से I think उससे कोई value add खास नहीं होता है. So value add होगा जब आप भी respond करोगे, आप भी participate करोगे. Okay, so let's make the most of these classes.
जब तक कि हम लोग को अब पता नहीं कि कब हम लोग क्लासरूम में मिल पाएंगे, पर जब तक हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं तब तक इन क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश, सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. Okay. So in this session, we are going to learn about financial statements, and there are 3 financial statements which are required to be prepared at least. So balance sheet, profit and loss, and cash flow. We'll understand revenue and expenses as well. Then there are various kind of transactions which happen in a company. So we'll understand how these transactions are to be noted and what is the recording process. Okay. So we are going to understand more about financial statements. मैम मुझे एक बार लायबिलिटीज और एसेट्स में डिफरेंस बता दीजिए. अच्छा, ठीक है. That is what I was trying to going to tell anyways. So liabilities क्या है? Liabilities are something which you have to pay back. Okay. In other words, liability can also be described as sources of fund. ठीक है. तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा कहाँ से आएगा? What are the ways of generating money? मैम या तो हम डेट ले सकते हैं या तो हम इक्विटी वाला कर सकते हैं. So मेरे पास तीन ऑप्शंस है. So जो हमने देखा था कैपिटल फॉर्मेशन में, I can ask people to participate in my business. I can take a debt from people and I can also take a bank debt. ठीक है. अगर मैंने डेट लिया तो ये मुझे वापस भी तो करना पड़ेगा ना. यस मैम. तो ये मेरी लायबिलिटी है. So liability can be defined by 2 ways. One is sources of fund. This is my source of fund. I'm borrowing. That is my source of fund. So it's a liability. Even if I'm taking it as equity, it's my source of fund. So again, source of fund is a liability. I'm taking a bank loan. It is my liability. ठीक है. और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है रॉ मटेरियल उधार पे लिया है ना. रॉ मटेरियल का भी पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने रॉ मटेरियल भी उधार पे लिया, बोला बाद में पे करेंगे, तो मुझे पे करना पड़ेगा ना. तो लायबिलिटी हुई वो मेरी. सो एनीथिंग व्हिच आई हैव टू पे बैक इज माय लायबिलिटी. और टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लायबिलिटी कैन बी थॉट ऑफ एज सोर्सेज ऑफ फंड. तो जहां जहां से पैसा आ रहा है वो मेरी लायबिलिटी है. चाहे वो मुझे रॉ मटेरियल वाला उधार दे रहा हो, चाहे वो मैंने बैंक से उधार लिया हो, चाहे मैंने किसी अपने फ्रेंड से उधार लिया हो, या मैंने शेयर होल्डर्स का पैसा लिया हो, ये सारे मेरे सोर्सेज ऑफ फंड है और ये मुझे वापस करना है. तो अगर बिजनेस बंद होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स विल आल्सो एक्सपेक्ट ना कि मेरा पास पैसा वापस मिले. यस मैम. तो जो पैसा किसी बिजनेस को वापस करना है वो उसकी लायबिलिटी है. ओके. ठीक है. अब पैसा तो मैंने ले लिया. नाउ व्हाट विल आई डू विद दिस? आई विल यूज इट. तो व्हेन आई यूज इट, इट बिकम्स एन एसेट. So liability can be described as sources of fund. Assets are your usage of fund. So मैंने for example बैंक से उधार लिया. अब बैंक से उधार लिया, now what will I do? अगर मुझे कोई प्लांट बनाना है तो मैंने एक जमीन ली, उसके ऊपर प्लांट बनाया, तो ये मेरा एसेट हो गया. एसेट हो गया. यस मैम. Right. So asset is something which I expect to earn more money for me. Okay. So asset can be defined as something which has value. It can also be defined as usage of fund. So liability मेरा sources of fund है, assets मेरा usage of fund. Usage of fund है. ठीक है. तो और क्योंकि जो मैंने पैसा उधार लिया है या जो पैसा मैंने जनरेट किया है उसका हर चीज का हिसाब होना चाहिए ना. अगर मैं 100 रुपया लिया तो मेरा 100 रुपए का यूजेज भी होना चाहिए. So therefore assets and liabilities are always equal. I cannot spend more money than I have. Right? So liabilities are my sources of fund. Assets are my utilization of funds. Okay. So I have to return the liability. Assets are used for making more money. Yes. तो मैंने क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि I think I will produce and I will sell and I will generate more money. Okay. मैम जैसे कि लैंड और बिल्डिंग ये सब एसेट्स में ही आता है ना? ये सारे एसेट्स हैं. Right. Yes मैम. Okay. This something. और एक दूसरा और सिंपल तरीका है.
and it involves only 2 English words. If you remember this, it'll be easier for you to always differentiate between assets and liabilities. Okay, तो 2 words आप याद रखिए. One is own, the other is owe. इन दोनों में डिफरेंस पता है? ओन और ओ में क्या डिफरेंस है? हम ओन का मतलब तो खुद का होता है. ओन मेरा खुद का, करेक्ट. यस मैम. और ओ जो मैंने borrow किया होता है. जो मैंने बोरो किया है. तो जो आप ओ करते हैं वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, और जो आप ओन करते हैं वो आपका करेक्ट. यस मैम. ठीक है, तो मैंने पैसा उधार लिया और मैंने उससे कुछ खरीदा, तो ये तो मेरी लाइबिलिटी है, पर ये तो मेरा खुद का है ना. तो ये दिस इज द वे ऑफ defining. So liability is also source of fund. Asset is your usage of funds. Right? तो ये asset और liability के 2 definition है, या तीसरा definition आप मान लीजिए. Asset is something which I own. Liability is something which I owe. Liability is the source of fund for me. Asset is the usage of fund. यूसेज ऑफ फंड. ओके मैम. Right? तो इसीलिए जो लोग जिन्होंने कॉमर्स किया होगा, ये आपने सुना होगा कि हमें एसेट और लाइबिलिटी टैली करनी पड़ती है. नो बिग डील. एसेट और लाइबिलिटी तो हमेशा टैली ही होनी चाहिए. अगर आपने नहीं किया तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जितना पैसा आपके पास है उतना ही तो आप खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हो. राइट? और आपने जो भी पैसा लिया है उसका हिसाब पूरा होना चाहिए ना. जितना पैसा आपने जनरेट किया है उतना यूजेज भी होना चाहिए. राइट? तो इसीलिए एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा मैच करनी चाहिए. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि जितना पैसे मैंने लिया है उसका पूरे का हिसाब मेरे पास होना चाहिए, मैंने किया क्या है उस पैसे का. सो दोज आर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो बैलेंस शीट्स, जैसे हमने देखा कि कंपनी में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि उनका पैसा कैसे यूज हुआ है. सो बैलेंस शीट इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स. सो द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैपिटल अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी. विल कम टू दैट, इसको हम और डिटेल में समझेंगे. So assets are what is owned by the business. जो business का खुद का है वो asset है. And liabilities are what is owed by the business. So जो उधार लिया है, जो पैसा वापस देना है, वो liability है. Now banks की जो बैलेंस शीट होती है वो काफी अलग होती है. क्या अलग हो सकता है या क्यों अलग हो सकता है? एक अगर आप बैंक की बैलेंस शीट कंपेयर करोगे जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज है, और एक बिजनेस की कंपेयर करोगे, तो उनमें क्या फर्क हो सकता है? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसकी बैलेंस शीट में और बैंक की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखोगे तो उसके ज्यादातर एसेट जो है फिक्स एसेट्स होंगे. तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या चाहिए होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जगह चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी. राइट? पर बैंक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है. राइट? बैंक का सोर्स ऑफ फंड क्या हुआ? बैंक के पास पैसा कहाँ से आ सकता है? सेविंग्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट. आई एम सॉरी मैम लोन्स. मैम लोन से बैंक के पास पैसा आएगा? मैम जो मैम इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं मैम बैंक में, बैंक में जो लोग जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मैम, इन्वेस्टर्स. यस, इन्वेस्टर्स नहीं, इन्वेस्टर्स तो अलग हो गया. जो अपने मनी को मैम, यस मैम, जो डिपॉजिट्स रखते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं बैंक में, वो वी विल सी इन डिटेल लिटिल लेटर. बट हाँ, बैंक का ज्यादातर पैसा कहाँ से आता है? जो पैसा बैंक में लोग डिपॉजिट रखते हैं, जो आप पैसा सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, वो बैंक का पैसा हो गया. तो ये सोर्स ऑफ फंड है, तो क्या हुआ? एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? मैम ये तो मैम लायबिलिटी हुआ ना. liability. Yes. So deposits for the banks are the liabilities because this is the source of fund and the bank has to return it, right? And फिर बैंक इसका क्या करता है?
what does the bank do with this money? मैम इन्वेस्ट जिसको लोन चाहिए होता है मैम एट द टाइम उसको प्रोवाइड करवाता है लोन। करेक्ट। तो इसका यूजेज क्या है? द बैंक यूजेस दिस मनी फॉर गिविंग आउट लोन। तो यूजेज हमारा एसेट होता है, राइट? तो बैंक की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज आर ऑल द बोरोइंग द बैंक मेक्स। सो बैंक जो है कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर से तो बोरो करता ही है, दैट वी ऑल नो। इट कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम आरबीआई, इट कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स। तो ये सब बैंक की लाइबिलिटी हो गई। एंड बैंक यूजेस दिस मनी टू गिव आउट लोन। सो सारे लोन प्रोडक्ट बैंक के एसेट्स हो गए, राइट? सो अगर आप अभी मैम इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करता है बैंक, करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही है ना, इट इज अ यूजेज ऑफ फंड एंड इट इज व्हाट द बैंक ओन्स। तो बैंक यूजेस दिस मनी फॉर गिविंग आउट लोन और फॉर इन्वेस्टमेंट। सो ऑल investments and loans are assets for the bank. All kind of deposits or borrowing are the liability for the bank, and that is how bank's balance sheet is different from the balance sheet of other corporates, because उनका main जो पैसा रहेगा वो उनके fixed assets में रहेगा, और बैंक का पैसा सारा का सारा in terms of deposit रहता है, in terms of loan and assets in terms of loan रहता है. So that is how balance sheet of a manufacturing company is different from a bank. So for a corporate, loans taken from the bank or anyone else are liabilities, while cash and balances are assets. As against that, for the bank, deposit from customers are liabilities, while loan given to the customers are assets. Okay, तो ये main difference होता है बैंक और corporate के balance sheet. तो नॉन बैंक की बैलेंस शीट आपको इस टाइप की दिखेगी। उनके बेसिकली दो काइंड के एसेट्स होंगे, एक तो नॉन करंट एसेट्स होंगे और वर्किंग कैपिटल। द डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल इज, ये हमारे शॉर्ट टर्म के एसेट्स हैं और ये हमारे लॉन्ग टर्म के एसेट्स हैं। करंट एसेट्स जैसे हम बोलते हैं कि आर एसेट्स which can be converted to cash in a short period of time. तो जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, अगर आपने कभी बैलेंस शीट, if we will see one of the balance sheet maybe of a bank, but कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे कभी, तो उसमें करंट एसेट्स होते हैं और फिक्स एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स कौन से एसेट्स है? करंट एसेट्स वो एसेट्स है which can be converted to cash very easily. तो फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा लिया और उसका रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल आपका क्या हुआ? एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ? एसेट हुआ। रॉ मटेरियल हमारा एसेट हुआ। अब रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस हमारा फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स बनेगा तो उसको हम बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल वही होता है जो एसेट जो है, वर्किंग कैपिटल के वही एसेट होते हैं जो कि विच कैन बी कन्वर्टेड टू मनी वेरी इजीली। ओके, the capital which is required for the day to day working. yes, correct. ओके, और वर्किंग कैपिटल टू डिफाइन, उसका वर्किंग कैपिटल का एक साइकिल होता है। वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश। सो लेट मी जस्ट show you pictorially so that'll be easier for you to remember. ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि हमें जो है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको सबसे पहले कैश चाहिए होगा। ठीक है, हमें कैश मिल गया। अब कैश से हम क्या करेंगे? हम जो है रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल से हम अपना काम शुरू करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया कि अपना कपड़ा खरीदा, बटन खरीदे, धागे खरीदे, ये उसका रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल को उसके जो है काट के रखा। अब ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी मेरा अगर इस अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा काम चल रहा है। पर अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ, व्हाट कैन आई डू इज आई कैन लुक फॉर समबडी हु विल बाय दिस फॉर मी।
ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो मेरी कंपनी पे कुछ विपदा आ गई, लाइक आई हैव टू क्लोज माय ऑपरेशंस, आई विल फाइंड समबडी हु कैन पिक अप दिस वर्क इन प्रोग्रेस एंड गिव मी सम मनी फॉर इट। तो रॉ मटेरियल भी मेरा एसेट है, वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरा एसेट है, और उसके बाद फिनिश गुड। और फिनिश गुड्स तो मेरा एसेट है ही है, क्योंकि फिनिश गुड्स को सेल करके आई कैन कन्वर्ट इट Make इनटू profit. मनी, राइट। तो ये सारे मेरे वर्किंग कैपिटल के assets है। Okay, so the assets which are used from converting cash to cash, अब finished good जब आएगा, finished goods जब मैं बेचूंगी, what will I get when I sell my finished goods? What will I get? Money, profit. Cash. I will get cash, right? Money. So this is the working capital cycle. So converting cash back into cash is working capital cycle. और जो भी हमारे यहाँ पे assets होते हैं वो मेरे working capital assets हैं, क्योंकि ये इसको हम करंट एसेट भी कहते हैं। करंट एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आज वो रॉ मटेरियल है, कल को वो वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, परसों को फिनिश गुड बन जाएगा। तो करंट मतलब ये चेंज होता रहता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे टाइप के एसेट्स क्या है, जैसे अगर एक शर्ट मेकिंग कंपनी है तो मेरे पास एक मशीन होगी, एक कैंची होगी, हैंगर्स होंगे। ये वाले जो एसेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। हैंगर हमेशा हैंगर ही रहेगा, सालों तक वो हैंगर ही रहेगा। मशीन हमेशा मशीन ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वो मेरे फिक्स एसेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, और ये मेरे करंट एसेट्स है। तो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट इज करंट एसेट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स कैश बन गया। तो मेरे करंट एसेट्स आर एसेट्स व्हिच कीप ऑन चेंजिंग, बट फिक्स एसेट्स जो मेरे हैं दोस आर द एसेट्स व्हिच विल रिमेन द सेम ओवर द वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, सो ये मेरे नॉन करेंट एसेट, इसको कई डिफरेंस उसमें बोलते हैं। नॉन करेंट एसेट्स बोल सकते हैं, फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल को हम करंट एसेट्स बोल सकते हैं, राइट। और ये पैसा आया कहाँ से, तो ये मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो गया। और ये पैसा कहाँ से आया है, आइदर आई हैव गॉट इट फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम नेट डेट। तो ये मेरी लाइबिलिटीज होगी, मेरे डेट और इक्विटी मेरी लाइबिलिटीज है, और मैंने जो उनसे सामान खरीदा है वो मेरे एसेट्स है। तो ये टिपिकल नॉन बैंक है। और टिपिकल बैंक में क्या होगा, बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ मनी इज डिपॉजिट विच द बैंक एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर्स। उसके अलावा उसकी कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं, इट कैन ऑल्सो रेज डेट एंड इक्विटी। तो अगर आप देखो एक नॉन टिपिकल बैंक की इक्विटी और एक बैंक की इक्विटी में कितना फर्क है। तो बैंक की इक्विटी कम होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर मनी कैन कम एज फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। नाउ व्हाट डज द बैंक डू विद इट, द बैंक गिव्स इट एज लोन, बाय ट्रेडिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट एसेट्स एंड बाय प्रॉपर्टी। सो ये बैंक के एसेट्स है और ये बैंक की लायबिलिटी है। तो एसेट और लायबिलिटी क्लियर हो गया? Any confusion still on asset and liability? No, ma'am. No, ma'am. Clarity No, होगी ना? ma'am. जो लोग बीकॉम वाले नहीं है उनको भी क्लैरिटी होगी एसेट और लायबिलिटी में? Yes, ma'am. Okay. Okay. So every business, the total assets are financed out of equity and liabilities income from others. And in normal courses, assets would always be greater than liabilities, क्योंकि हम owners equity को अलग रख रहे हैं। तो asset is always equal to owners equity plus liability. तो liability क्या है कि पैसा कहाँ से है, asset उस पैसे का हमने क्या किया है, राइट। तो पैसा आपके पास दो टाइप से आ सकता है, owners equity से आ सकता है और debt से आ सकता है, and this total money you will use to buy the assets. Okay. So owner's equity, also known as capital, is the excess of assets over liability. Any loss in the business takes away from the equity and profit by the business add to it. तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपके एसेट्स जो मैंने आपको बताया, गुड्स एंड रिसोर्सेज ओन्ड बाय द कंपनी, लायबिलिटीज आर डेट ऑफ द कंपनीज, एंड ओनर्स कैपिटल भी इसी में हम ऐड कर देते हैं। जो हमें प्रॉफिट होता है ना, वो भी प्रॉफिट अगर हुआ है तो वो ओनर्स का है, तो इट इज एडेड टू द ओनर्स इक्विटी। तो theoretically or rather mathematically your assets are equal to liabilities plus owners capital. तो अगर आपको कभी एसेट और लायबिलिटी दोनों दिया हो
और एसेट ओनर्स इक्विटी निकालना हो तो इट इज सिंपल एसेट माइनस लायबिलिटीज. So this is what the balance sheet does. Balance sheet is drawn up into assets and liabilities, which I told you. Assets are broadly classified as fixed assets and current assets. Owner's equity is a liability of the business towards its owner. Apart from that liabilities are classified as current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities are liabilities जो अभी हमें एक साल के अंदर पे करना है, और non-current liabilities are liabilities which can be paid later. तो अगर किसी बिजनेस से बैंक लोन लिया है तो ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटी है, जो इंटरेस्ट उसको पे करना है उसको अभी पे करना है तो वो करंट लाइबिलिटी होगी, और जो उसको लोन वापस करना है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आज नहीं पे करना है, 5 साल के बाद पे करना है फॉर एग्जांपल. सो एनीथिंग व्हिच हैज टू बी पेड विद इन एन ईयर इज करंट लाइबिलिटी, एनीथिंग व्हिच हैज टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर इज नॉन करंट लाइबिलिटीज. उसके अलावा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी होती है. कंटिंजेंट मतलब जो आपको पता नहीं, 100% श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, पर सारे बिजनेसेस इसके लिए एक प्रोविजन बना के रखते हैं, अगर होगा तो हमारे पास ये पैसा है. So contingent liabilities are those items which might become liabilities in future depending on happening or non-happening of some event. ठीक है, तो मेरी कंपनी के ऊपर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने कोई सूट फाइल कर दिया है. अब कोर्ट जो डिसाइड करेगी, हो सकता है मुझे कोई पेनल्टी देनी पड़े, हो सकता है मुझे नहीं देनी पड़े, तो ये मेरी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. इट विल डिपेंड इफ सर्टेन थिंग हैपेंस. However, I will have to make a provision for that. So that is known as contingent liabilities. So ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया. Liabilities are the sources of fund, assets are the usage of fund. So ideally your liabilities plus owner's equity are equal to the company's assets. So यही बैलेंस शीट जिन्होंने बीकॉम किया है, बैलेंस शीट का बैलेंसिंग यही है कि आपका हमेशा assets should be equal to your liabilities plus owner equity, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं. So net worth is the money which the company would receive after fulfilling all the liabilities. So shareholders have a residual claim on the assets of the company in case of closure. The money which is left after paying all the liabilities would be paid to the equity shareholders. This is what it is. So owner's equity is equal to total assets minus total liabilities. Owner's equity represents the ownership claim on total assets. तो आपका जो ओनर्स इक्विटी है वो भी चेंज होता रहेगा. तो कैपिटल जो पैसा पहले ओनर्स ने दिया है, उसके बाद ड्रॉइंग्स जो भी उससे विड्रॉ हुआ, अगर लॉस हुआ तो यहीं से आएगा ना, सो वो ड्रॉइंग्स हो गई. जो ऐड हुआ वो रेवेन्यू हो गया, और जो खर्च हुआ वो एक्सपेंस हो गया. मैम मैम जो लिखा हुआ है कि ऑनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, मैम इस लाइन का मीनिंग बता दीजिए. ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट. सो फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, उसमें 100 रुपए का माल है, करेक्ट, पर आई कैन नॉट क्लेम कि ये 100 रुपया मेरा है ना. उसमें से फॉर एग्जांपल मैंने 50 रुपये का सामान उधारी पे लिया था. तो इफ आई वांट टू शट दैट शॉप, what I'll have to do is I'll have to first return that 50 rupees. Yes, right? ma'am. तो मेरा कितना Yes, पैसा हुआ? सिर्फ 50 rupees हुआ ना? Yes, ma'am. So that is what it is. Owner's equity represents the ownership claim on total asset. तो जो total asset है, it doesn't belong to the business. You have to subtract the liability. जब सारी liability पे हो जाएगी, जो बचेगा वो मेरा होगा ना. सारा पैसा तो मेरा नहीं है ना. That is what it is. Okay, ma'am. तो ओनर्स इक्विटी चेंज होता रहेगा. क्यों चेंज होता हुआ रहेगा? अगर द इन्वेस्टर गिव्स मोर मनी इट विल इंक्रीज, ऑब्वियसली. प्रॉफिट हुआ है तो ओनर्स इक्विटी विल इंक्रीज. लॉस हुआ है तो ओनर्स इक्विटी विल डिक्रीज. और विड्रॉल बाय द ओनर, अगर ओनर हैज टेकन आउट सम मनी इट विल डिक्रीज. सो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अगर पैसा ज्यादा आएगा तो इंक्रीज होगा, पैसा ज्यादा निकलेगा तो डिक्रीज होगा. Okay,
So can you do this? Can you solve this? So फिक्स एसेट दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिया हुआ है. Can you calculate the shareholders equity by the formula we have just seen? So take 2 minutes and try to solve it. मैम मैम 80 I'm 80. मैम 80. Yes, so were you able to calculate how much is the owner's equity? मैम 80. Ma'am, 80. 80. So Yes, ma'am. so you will add the current assets and the fixed assets, which is 70 plus 50, 120, and you will add the current liabilities, which is 30 plus 10, which is 40. And we have seen the formula for owner's equity, which is current, assets minus liabilities. So total assets is 120 minus 40, 80 is the shareholders equity. So कुछ नहीं है shareholders equity कि shareholders के पास कितना पैसा बचेगा after paying in all the liabilities. Ma'am, हाँ, ma'am, what are the fixed assets and current assets? तो मैंने आपको एग्जांपल तो दिया था. फिक्स जो आपके वर्किंग कैपिटल एसेट्स है वो आपकी करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स जो कि चेंज होते रहते हैं आपके वर्किंग साइकिल में, राइट? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, वो आपके करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स आर assets Yes, which ma'am. can be converted to cash very quickly, okay, and they change over the working capital cycle, whereas fixed assets remain constant over a period of time, right? तो आपकी जो मशीनरी हो गई, जो प्लांट हो गया, वो आपका फिक्स एसेट है, और जो रॉ मटेरियल है वो आपका करंट एसेट है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड बनेगा, वो चेंज होता रहेगा, और फिक्स एसेट्स आपका वही रहेगा. सो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे तो बन नहीं सकते. यू हैव टू आइडेंटिफाई ईच ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करना है और समराइज करना है कि कहाँ जाएगा ये. So these are some statements which are prepared for summarizing accounting data. So you will have a income statement. So इसमें हम क्या लिखते हैं? Revenue and expenses. So income कितनी होगी? Revenue minus expenses are your income. So अगर revenue is less than expenses, obviously that will be a loss. So your income statement presents the revenue and expense and result net income or net loss of a company for a specified period of time. Balance sheet जो है as on a specific date बनती है. Okay, so balance sheet, as we have seen, reports the assets, liabilities and owner's equity of a business enterprise at a specified date. Obviously ये change होता रहेगा, but the balance sheet will give you a position as on a particular date. Usually financial year end पे बनती है, या half yearly भी बन सकती है, quarterly भी बन सकती है, but it is usually made on 31st, as on 31st March or 30th of June or 30th September. Okay. Then cash flow. Cash flow simply summarizes the information concerning the cash inflows and outflow for a specific period of time. और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, जैसे हमने देखा, ओनर इक्विटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द मनी इज कमिंग और द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट. सो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी समराइजेस द चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. And financial statement also include note which are integral part of the financial statement. So कुछ चीजों को explain करने के लिए you need to have notes which are also a part of the financial statement. So this slide will give you a better idea on fixed assets, current assets and liquid assets.
सो टेक 2 minutes एंड रीड इट ऑन योर ओन. वैसे मैं समझा चुकी हूँ, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जस्ट टेक 2 minutes टू रीड दिस स्लाइड ऑन योर ओन. राइट, अब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट का कंफ्यूजन दूर हो गया. So fixed assets are those which are acquired for long use in business itself and not for resale. So it can be plant, machinery, land and building. Current and floating assets are those which are meant to be converted into cash as soon as possible. So आपका stock, debtors, raw material are your current or floating asset. Liquid assets are assets which can be converted to cash immediately. तो जो आपका the money you have in cash is your liquid asset. The money you have invested in government securities is your liquid asset. मैम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब समझे नहीं. Government securities मतलब कि आपने मैम लाइक टैक्सेस. No. That is not government securities. आपने क्या किया है, आपने कैश की जगह आपने उसको गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दिया. गवर्नमेंट हमने देखा ना, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बोरोवर. आई एम सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज. चेक्स मैम जैसे कि चेक्स वगैरह. हाँ, चेक्स भी लिक्विड एसेट्स है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट. उससे कंफ्यूज मत होइए. एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इज टू कैश इमीडिएटली इज लिक्विड. तो हमने लिक्विडिटी देखा है ना, मेजर लिक्विडिटी का मेजर है लाइक द ईज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एसेट इनटू कैश इज लिक्विड. तो जो भी चीज तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड है. तो चेक्स जैसे आपने बोला, यस, वो भी लिक्विड एसेट्स है. बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला है, दैट इज द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती है, एंड यू कैन सेल इट वेरी इजीली. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखा है. So liquid assets are those current assets which are already in form of cash or which can be readily converted into cash. Now बैलेंस शीट में आपके वेस्टिंग एसेट्स भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने माइन लिया है, माइन भी एसेट है ना. माइन में जो ओर है उसका एक लिमिटेड लाइफ है, तो वो वेस्टिंग एसेट्स है. So wasting assets are those fixed assets which have a fixed content. The value does go down as the contents are taken out. So every year your value of fixed asset will become less. उसके अलावा बैलेंस शीट में आपको इंटेंजिबल एसेट्स भी दिखेंगे. इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? जिसको छू नहीं सकते, जिसको फील नहीं कर सकते, दोज आर इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है. उसके अलावा पेटेंट्स होते हैं. पेटेंट्स मतलब आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसका राइट आपको मिलने वाला है, तो वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि पेटेंट आपको मिल गया तो यू कैन कमांड द मोनोपोली इन द मार्केट. तो वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स है. So intangible assets are those assets which cannot be seen or touched or felt. Then fictitious assets. Fictitious मतलब fiction का मतलब कहानी ना. तो fictitious assets are valueless assets but shown in asset in financial statement. So useless trademark or expenses treated as assets. So fictitious assets do not have any value. So this we have seen. Liabilities are something which has to be returned. So liabilities are claim against assets, and therefore हमने देखा equity owners equity is assets minus liability. जो भी आपकी value है business की, आपको you will only get after paying in the liabilities. So they are existing debt and obligations. शालिनी अपना प्लीज, शक्ति आपके पीछे भी कुछ चल रहा है, सो प्लीज अपना म्यूट माइक म्यूट कर दीजिए. सो लाइबिलिटीज कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म को हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट बोलते हैं. तो जो लाइबिलिटीज हमको बाद में पे करनी है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है या नॉन करंट लाइबिलिटीज है, और जो लाइबिलिटीज हमें अभी कुछ टाइम में पे करनी है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज है.
ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, बट एनीवेज विल जस्ट रीड इट. So long term or fixed liabilities, they are liabilities which are payable on the termination of business, such as capital to the proprietor, whereas long term liabilities are those which will be redeemed after a long period of time. So long term loans, owners capital, वो आपकी सब fixed या long term liabilities हैं. Current liabilities which have to be paid within a year. So जो आपके creditors हैं, creditors वो हैं जिन्होंने आपको उधार दिया हुआ है, बैंक लोन, बिल पेबल, ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज है. सो दे आर लाइबिलिटीज व्हिच हैव टू बी रिडीम्ड इन द near future, usually within a year. Then contingent is something which might happen, might not happen. So contingent liabilities are liabilities which you might have to pay or might not have to pay. So they are not actual liabilities, but they become actual liabilities depending on happening of certain events. If such events do not occur, no liability will occur. So this is the difference between assets and liabilities. तो मुझे लगता है आज के बाद आप कभी भी एसेट और लाइबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे. सो ये एक डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, एक क्लासिफिकेशन. एन एसेट इज समथिंग व्हिच इंडिविजुअल और अ कंपनी ओन्स, जो उसका खुद का है वो उसका एसेट है. लाइबिलिटी इज समथिंग व्हिच एन इंडिविजुअल और अ कंपनी ओज, जो किसी को वापस करना है या जो किसी से उधार लिया है वो हमारी लाइबिलिटी है. Assets are those objects which are owned by the company having monetary value, immaterial of tangible or intangible. So जिससे भी कंपनी पैसा बना सकती है, कमा सकती है, that is an asset. Liabilities are debt or responsibility or an obligation owned by the company having monetary value. Types same है दोनों के, current assets, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities. ये फॉर्मूला भी हमने देखा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी ना. तो पैसा आपने जो एसेट्स बनाए हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आया है आपके पास, या तो आपने उधार लिया होगा या फिर ओनर ने लगाया होगा, दोनों को मिला के ही आप एसेट्स खरीदेंगे ना. सो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी. और फिर अगर मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे तो लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर्स लाइबिलिटी. सो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी. एग्जाम्पल्स, बिल्डिंग, कैश, गुडविल, अकाउंट रिसीवेबल. तो ये दो चीजें होती है बिजनेस में, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, राइट. तो अकाउंट रिसीवेबल मतलब कि आपके पास ये पैसा आना है, ये आपका पैसा है इसलिए आपके पास आएगा, तो वो आपका एसेट है. अकाउंट पेबल मतलब ये पैसा जाना है तो वो आपकी लाइबिलिटी है. सो लाइबिलिटी कैन बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और अकाउंट पेबल. मैम, हाँ मैम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैम दोनों डेफिसिट में आएंगे? नहीं, डेफिसिट में क्यों आएंगे? नहीं, डेफिसिट में क्यों आएंगे? दोनों बराबर होंगे ना, डेफिसिट नहीं होगा ना, दे हैव टू बी इक्वल. यस मैम. डेफिसिट है इसीलिए तो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की है. यस. एज अ बिजनेस मेरे पास डेफिसिट है, तभी तो मेरी लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई है, तभी तो जनरेट हुई है लाइबिलिटी ना. यस मैम. इसके बाद दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस. सो इट टेल्स यू प्रॉफिट कब होता है. ये तो सब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं. प्रॉफिट जब होता है जब मेरा रेवेन्यू मेरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑब्वियसली वी विल नोट डाउन द expenditure and revenue. So profit and loss account or income statement is a listing of financial activities done by business during a particular period. The period for which the P&L account is prepared is for a period of 1 year, also known as accounting year. So accounting में accounting year का concept चलता है. So accounting year in India is 1st April to 31st March. And we know profit is the excess of income earned by the company over expenses incurred by the company in the said period. And loss is negative profit caused by excess of expense over income. So simple cheez hai, it is about income. Profit and loss will be dependent on the income and expenditure of the company.
तो इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्रॉफिट होगा, इनकम कम होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो लॉस होगा. सो दैट इज व्हाट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स note. So total revenue minus total expenses is equal to profit. सो प्रॉफिट इज लॉस से ही फिर आपका बैलेंस शीट बनेगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो दिस विल बी एडेड टू द ओनर्स इक्विटी, अगर लॉस हुआ है दैट वुड बी subtracted from the owner's equity. So the objective of profit and loss account points out to the progress registered by the company. So your income statement is over a period of time. तो 1st मार्च से 31st मार्च तक के आप सारे एक्सपेंडिचर और इनकम लिखेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस हुआ है कि नहीं, और उसको फिर आप लेके बैलेंस शीट में नोट करेंगे. सो बैलेंस शीट देयरफॉर इज वन मोमेंट इन टाइम. सो 31st मार्च, एज ऑन 31st मार्च क्या स्टेटस था कंपनी का, दैट द बैलेंस शीट विल टेल यू. So balance sheet has to disclose information about revenue expenses that are direct result of business operations. Cash flow, as the name suggests, it captures the movement of cash through business over duration of the accounting year. तो इसमें आपके 3 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं: ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो. सो ऑपरेटिंग क्या है? द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस as a result of day-to-day operations is your operating cash flow. Investment cash flow is tracks movement of cash resulting out of acquisition or disposal of long-term assets. I will just explain you with an example. Just give me a moment. And disposal of long-term assets and other investment. Financing cash flow measures the impact of borrowing and raising of capital on the cash flow of the business. ठीक है? तो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, तो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहां से आएगा? जो ये कैश फ्लो कैसे बनेगा? जो ये रॉ मटेरियल कैश में खरीदते हैं और जो ये सेल्स करते हैं रॉ कैश में, तो वो आपका मूवमेंट ऑफ कैश हो गया, इन एंड आउट. सेल्स से कैश आएगा और परचेज से कैश बाहर जाएगा, तो वो कैश फ्लो हो गया. उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो. अब एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने अवन खरीदा, तो ये इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो हो गया ना. इन्होंने जो है अवन खरीदा या एक कुर्सी बेची, सो यहाँ से कुर्सी बेचने के कैश आया और अवन खरीदने से कैश का आउटफ्लो हो गया. फाइनेंसिंग कैश फ्लो, किसी से उधार लिया, कैपिटल रेस किया, वो सारा फाइनेंशियल कैश फ्लो हो गया. तो बेसिकली कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब आपका कैश प्रॉफिट नॉट नेसेसरली अकाउंटिंग प्रोसेस हो, राइट? क्योंकि आपकी कैश अकाउंट भी हो सकती है, अक्रूवल भी हो सकता है. अक्रूवल मतलब कि क्या ड्यू है, अभी हुआ नहीं है, ड्यू हो गया है पर हुआ नहीं है, उसको हम अक्रूवल बोलते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल मुझे मैंने बैंक को लोन दिया हुआ है, लाइक, या बैंक के साथ मैंने डिपॉजिट रखा हुआ है और वो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है. दैट मीन्स कि ये पैसा मुझे मेच्योरिटी के टाइम मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा. तो मैंने 2 साल का एफडी रखा हुआ है, तो पैसा मेरा और 31 मार्च को मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो गया है, मतलब ड्यू हो गया है, पर मुझे मिलेगा नहीं. मुझे मिलेगा कब? जब मेरी एफडी मैच्योर होगी. तो सो अक्रूवल को आप बोल सकते हैं एनीथिंग विच हैज बीन डन बट नॉट येट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. सो दैट इज व्हाट इज अक्रूवल. तो कैश तो है कि कैश मूवमेंट हो गया है, पर अक्रूवल में एक्चुअली कैश मूवमेंट नहीं हुआ है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश अकाउंटिंग.
तो आपका फॉर एग्जांपल सेल, जैसे रेस्टोरेंट की बात मैं कर रही हूँ, तो रेस्टोरेंट में अगर कोई कस्टमर आया, उसने आपको आपसे कॉफी खरीदी और आपको पैसा दे दिया, तो ये तो कैश में हो गया ट्रांजैक्शन। बट आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है, राइट? वो पार्टी तो ऑर्गेनाइज हो गई, सब खा पी के चले गए, बट ये पैसा आपका अभी तक आया नहीं है, तो ये अक्रूवल है। ये जो पैसा कैश आपको मिल गया वो कैश हुआ, और अक्रूवल इज ड्यू है, that it has ड्यू है become क्या? due but not yet received. Yes. So expenses that are not yet billed. मैम कैश प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब? अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग आपने कर लिया है, सो हम लोग इंडिया में अकाउंट अक्रूवल पे काम करते हैं, मतलब कि ये हो गया है, राइट? पर Yes, ma'am. कैश आपके पास नहीं आया है। तो वैसे देखो तो थ्योरेटिकली आपको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपका एक्सपेंस था 6,000 रुपए और आपको अक्रू हो गया है 8,000 रुपए, ठीक है? तो आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए है, पर वो 2,000 अभी तक आया नहीं है, तो कैश में आप नहीं दिखा सकते ना उसको, वो आपका अक्रूवल पे हुआ है। So cash profit might not be equal to your accrual profit. अक्रूवल का जब कैश आएगा तब वो कैश प्रॉफिट बनेगा ना। तो यही तो डिफरेंस है कैश और अक्रूवल में। कैश में इट हैज बीन रियलाइज्ड, अक्रूवल में इट इज नॉट बीन रियलाइज्ड, राइट? So cash flow statement is the critical tool of analyst. So this is what accrual is. Money not yet received. तो सेल हो गई है पर पैसा अभी तक आया नहीं है। Ma'am, if Huh? half of the money is received, then हाँ, I'm sorry. if half of the money is received, तो हाफ then ऑफ कैश में दिखा दोगे, हाफ अक्रूवल में दिखा दोगे। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली है ना। जितना आया वो कैश है, जो नहीं आया वो अक्रूवल है। अक्रू हो गया है मतलब ड्यू हो गया है पर आया नहीं है, राइट? जो जितना कैश में आया है तो वो कैश में दिखाओगे आप, जो नहीं आया है वो नहीं दिखा सकते। So your cash flow statement takes into account all the cash flow in the company. So ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैश इनफ्लो व्हेन कंपनी मेक्स अ सेल, कैश आउटफ्लो व्हेन कंपनी पेज डिविडेंड एंड रीपर्चेज शेयर्स, कैश आउटफ्लो व्हेन कंपनी परचेज न्यू प्रॉपर्टी एंड लैंड। सो जो भी आपका ट्रांजैक्शन कैश, मतलब अब ये मत सोचो कि फिजिकल कैश में हो रहा है, बट आपका इवन इफ यू आर इशूइंग अ चेक और यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू अ कार्ड, सो वो सारे आपके कैश एक्सपेंसेस हैं and they have to be shown in the cash flow statement. So तीन तरह से कैश जनरेट हो सकता है जो मैंने आपको बताया। कैश कैन बी जनरेटेड by operations, investments and financing. So cash flow divides the amount of cash generated by business into 3 pockets. So ये फिर से एग्जांपल्स दिए मैं आपको। So investing activities is acquisition or disposal of long-term assets, because both will involve cash inflow or outflow. So they will involve some kind of cash movement. So therefore, they'll have to be noted in the cash flow statement. So cash flow categories can be investing activities, represent acquisition and disposal of long-term assets and other investment not included in cash equivalent. So cash invested in purchase of fixed asset, financial investments and amount realized from sale of such assets. Then operating activity, जो काम कर रही है उससे जो कैश जनरेट हो रहा है या जो कैश स्पेंड हो रहा है। तो अगर आप दो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, एक कैफे का एग्जांपल देख रहे हैं और एक शर्ट मेकिंग कंपनी का एग्जांपल देख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जितना भी आपका सुई धागा कपड़ा में खर्च हुआ या फिर आपने सेल कर दिया और जो पैसा आया, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? और कैफे में भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा तो आपका आउटफ्लो हुआ, आपने कोई सेल की तो आपका कैश इनफ्लो हुआ। Principal revenue producing activity of the entity, cash flow generated through sale of goods and services, amount paid towards procurement of raw material, wages paid and other expenses incurred.
So these are operating activities. Now, financing activities that result in change in sizes and composition of contributed equity and borrowing of the entity. तो आपने उधार लिया तो कैश इनफ्लो हुआ, आपने शेयर्स इशू किया तो कैश इनफ्लो हुआ. So represent borrowing or repayment of loan and issue and buyback of equity shares. So cash कहाँ से आया? Basically that is what your cash flow is telling you. एंड मैम डिविडेंड पे करेंगे तो कैश आउट डिविडेंड, हाँ, कैश आउटफ्लो होगा. करेक्ट. So your cash flows with statement includes accounts payable, depreciation and amortization. Now amortization is the process of प्रोवाइडिंग फॉर योर एक्सपेंसेस. सो जैसे आपने बहुत बड़ा एक्सपेंस कोई किया कि बहुत बड़ी आपने मशीन खरीदी, अगर आप उसको एक बार में ही दिखा देंगे अपने बिजनेस में तो आपका जो है बिजनेस का जो सिनेरियो है बहुत बड़ा लॉस दिखा देगा, राइट. तो इसमें क्या करते हैं, आप उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते हैं, मतलब कि आप जो है उसको रादर देन शोइंग दैट एक्सपेंस इन वन गो यू स्प्रेड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उसको हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं. और डेप्रिसिएशन तो पता है, डेप्रिसिएशन मतलब मैंने कोई भी एसेट लिया, उसकी हर साल वैल्यू कम होती रहती है. हाँ मैम डेप्रिसिएशन मतलब हर साल वैल्यू कम होती रहती है. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Just give me a moment. Just give me a moment. Huh? Okay. So yeah. So these are also included in the cash flows. So cash, obviously, we have seen sales will be added. Account receivable, that money which has to come. So deduct receivable from net income. Receivable cash में नहीं आया है, so that is only accrued. So you will deduct it from the net income. ओके और जब अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल इन्वेस्ट टू जनरेट मनी फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नॉट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. बैंकिंग का डिफरेंट है, बैंकिंग का तो बिजनेस ही है, राइट. So investors prefer companies that generate cash primarily from business operation and not from investing and financing activities. So your cash flow in financing is the last business activity detailed on cash flow statement, provides an overview of cash used in business financing. Investor uses to find the amount paid out in dividend or share buybacks.
cash obtained or paid back from capital fundraising effort is also included. So anything which affects the financing of the company would be shown as financing cash flow. So दो टाइप से आपके कैश फ्लोज आएंगे, एक तो डायरेक्ट है, एक तो सारे बिजनेसेस में एक कैश फ्लो कैश लेजर होता है जिसमें आपके कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो नोट होता है. Okay. So cash flow is taken from the cash ledger, picks the total of cash received and paid directly from the cash flow. Then indirect, each component of cash flow statement is derived using balance sheet and income statement. Most companies calculate operating cash flow using indirect method. ठीक है, तो कहाँ से generate हुआ पैसा और कहाँ गया, that is the indirect way of taking your cash flow. So यहाँ पे you can see the difference between cash flow statement methods. So direct, actual cash flow information is used from cash ledger or cash book. Use accrual information starting from net income and adds back non-cash expenses and deducts non-cash incomes. Direct reconciliation is done to separate cash flow from other items. Net income is converted in the form of cash flow. All non-cash transactions are ignored, whereas indirect, all factors are taken into account. Cash obviously is very accurate because no adjustment calculation need to be made because जितना cash आया और जितना cash गया है वो आपका सारा cash flow में है. Indirect not very accurate since this is a derived statement क्योंकि इसमें आप accrual concept के ऊपर काम कर रहे हैं. Now it is slower to prepare because cash and non-cash transactions have to be segregated. Faster to prepare because all details are readily available from other books. So जो direct cash flow statement आप बना रहे हैं उसका जो data है वो आप cash book से ले रहे हो, indirect का आप बाकी different books से ले रहे हो. So some of the norms are different for financial company क्योंकि एक business में जिस तरह से cash flow होगा it will be very different for a financial business like an NBFC. So NBFCs, as we have discussed earlier, are finance company which do work which is similar to the banks. So they also accept deposit, they also lend out loan. The only difference is they cannot accept demand deposits like current account and saving account. So RBI has given different norms for accounting for the NBFCs. So there are different norms for NBFCs. So they have to account under Indian accounting standard. It has become mandatory from 1st April 2018. So Indian accounting standards are the standards published by the Institute of Chartered Accountant, and this is the standard way of presenting your account. So कोई account किसी तरह से भी बना सकता है, but to have a consistent picture, it is recommended that or in certain cases mandated that accounting statements are meant as per the accounting standards. So it has become mandatory for the NBFCs to prepare their account as per the accounting standard. NBFCs with net worth of 500 crores or more and their group companies, joint ventures had to implement in phase 1 from 1st April 2018 and others from 1st April 2019. So we are, in a time period where they should have actually done it. So the NBFCs will also have to prepare their accounts as per the accounting standards. Accounting standard comprises 39 accounting standard, which has been aligned with the International Financial Reporting Standards. Further amendments are issued every year to keep the accounting standard aligned with the standards published by the IASC, a global organization. So we have been seeing this, that India is in the process of globalization. That means it is allowing
people to international companies to come and do business here, and at the same time Indian Indian companies are going and doing business abroad. So there has to be a standard way of presenting the accounts. So in the Indian accounting standard has been trying to align it with the international financial reporting standard. So the Indian accounting standards require much stringent reporting requirement to be followed by NBFCs and financial institutions. For example, upfront fees collected for a long-term loan will now have to be amortized over the entire tenure of the loan, then be recognized as revenue in the years be collected. So amortization का मैंने example दिया था. So rather than taking it as one-time thing in the balance sheet, it has to be amortized over a period of tenure. So for example 50 रुपए लिया है और तो 50 रुपए एक बार में नहीं दिखा सकते, और 10 साल का लोन है तो हर साल आपको 5 रुपया दिखाना पड़ेगा. मैम जैसे 50 रुपीज लोन लिया है तो मैम लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 5 रुपए हर साल दिखाना पड़ेगा. हाँ, नहीं, यहाँ पे ये एसेट हो जाएगा ना, लोन एनबीएफसी ने दिया है तो ये उनका एसेट हो जाएगा. अच्छा मैम, अगर एनबीएफसी का बैलेंस शीट बनेगा. हाँ, करेक्ट. Right? Yeah. So again, changes of how bad loans are to be recognized put the pressure on NBFC to set up collection efforts on overdue accounts. So basically, NBFCs, क्योंकि now RBI has been promoting NBFCs for financial inclusion. मतलब कि जहाँ पे भी banks नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे NBFC tries to give have a NBFC. So NBFCs को भी financial inclusion के लिए RBI use कर रहा है, but the RBI also has to ensure discipline in the market. So इसलिए NBFC के लिए भी accounting standards अब आ गए हैं. That is what it means. For RBI being the regulator of the banking system, banks के लिए भी ये mandated है कि they follow the Indian accounting standards. So RBI mandate adoption for Indian accounting standard for banks from 1st April 2018. And adoption of Indian standard accounting standards is in line with RBI's and the government efforts to clean up the bad loans in the banking sector and to improve credit quality. तो अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि a lot of time RBI speaks about bad loans. Bad loans are basically loans which are not coming back. For a bank, a bad loan is a loan which is not coming back. Okay, so उसकी वजह से बैंक की बैलेंस शीट काफी affected होती है. So that's why RBI has given proper standards to the banks to account for these bad loans. So the accounting standard also requires early recognition and higher provision for bad loans and off balance sheet exposure using the expected credit loss model, which also has an impact on capital requirement of the bank. तो अगर आप बैंक की बैलेंस शीट पढ़ो तो बैंक को जो है सबसे ज्यादा लॉस किससे होता है? सबसे ज्यादा लॉस होता है जो लोन वो देते हैं और वो वापस नहीं आता. सो इफ यू लुक एट, बैंक का अपना खुद का पैसा तो नहीं है ना, बैंक बोरोज फ्रॉम द डिपॉजिटर्स एंड गिव इट टू द अदर पीपल, राइट? तो अगर वो वापस नहीं आया तो बैंक हैज टू गिव दैट मनी बैक फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. सो दैट इज अ लॉस. सो फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट, तो फिर एक्चुअली बैंक का एक्चुअल लॉस इज द पीपल लॉस. सो आरबीआई सेज कि द बैंक हैज टू रिकॉग्नाइज ऑल दैट लॉस एंड मेक अ प्रोविजन फॉर इट, कि बैंक उसको कैसे पे करेगा. सो क्रेडिट लॉस इज बेसिकली द मनी विच विल नॉट कम बैक. हम बैड लोन्स कहाँ पे आएंगे? बैड लोन्स का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा ना. वैसे अगर देखो तो लोन्स आपके एसेट्स में आएंगे.
और उसको आपको एसेट से धीरे धीरे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वापस नहीं आ रहा है। तो आपको उसमें उसमें जो आपका प्रॉफिट है ना, उससे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। दोज आर नॉट कमिंग बैक, राइट। तो उसका प्रोविजन, तो देखो अगर आप बैंक का बैलेंस शीट देखोगे तो लोन्स हमने देखा कि लोन्स आर एसेट्स फॉर द बैंक। अब ये बैंक वापस नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से आप कम करोगे? आपको अपनी लायबिलिटी में से प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी ना, प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यस मैम। तो आप ऐसे तो नहीं कि एसेट्स आप घटा दो, मतलब सिर्फ एसेट घटा दो, वैसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो अगर वहां से आपको हटाना है तो यू हैव टू मेक सम प्रोविजन इन द लायबिलिटी साइड। यस मैम। सो ये हमने देखा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक एंड एनबीएफसीज एंड नॉन बैंक्स। बैंक और एनबीएफसीज के बैलेंस शीट में आपके जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो सारे लायबिलिटीज होंगे। सो प्राइमरी लायबिलिटीज आर डिपॉजिट प्लेस्ड बाय डिपॉजिटर और लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंक के लिए प्राइमरी लायबिलिटीज आर लोन ओड बाय बैंक्स, एनबीएफसी एंड पेबल टू द सप्लायर। तो इनके पास, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक के पास पैसा आता है by accepting deposit। नॉन बैंक के पास या बिजनेस के पास कहाँ से पैसा आएगा? दे कैन टेक लोन्स और दे कैन आस्क और सप्लायर्स जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बैंक और एनबीएफसी में प्राइमरी एसेट्स आर लोन गिवन टू द बोरोअर्स व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स। तो बैंक के जो एसेट्स हैं वो ऑल टाइप ऑफ लोन्स है। बाकी नॉन बैंक के एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट्स in terms of stock and book debt. So primary assets are manufacturing assets and current assets in terms of stock and book debts. A large portion of contingent liabilities due to letter of credit, bank guarantee issued on behalf of the customer. से bank guarantees और letter of credit हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे, but basically these are guarantees by the bank. तो अगर गारंटी का क्या मतलब है कि पे किसी और को करना है, अगर वो नहीं पे करेगा तभी बैंक को पे करना पड़ेगा, otherwise bank does not have to pay. So these are contingent liability. They will arise only if the customer does not pay. Okay. बाकी बिजनेस के लिए contingent liability might be nil or very small portion as contingent liabilities. Also जो हमने देखा कि regulation pertaining to bad loans and NPA recognition is quite different from company, hence the size is significant larger. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कि जिन एसेट्स का पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या प्रिंसिपल नहीं आ रहा है या दोनों नहीं आ रहा है, वो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। तो उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे और उसको हम किस तरह से शो करेंगे, उसके लिए आरबीआई ने अलग पूरा गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ओके, so regulation pertaining to bad loans and NPA recognition is quite different from companies, hence the size is significantly larger. और इनके लिए देयर आर मच लिबरल गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ बैड लोन्स एज कंपेयर टू द बैंक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी इनके लोन है वो खुद के हैं। ये जो बैंक ने लोन दिया है वो पैसा कहीं से उधार लिया है और लोन दिया है, इसलिए एनपीएस को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक टू रिकॉग्नाइज द एनपीए एंड डू प्रॉपर अकाउंटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? प्रॉफिट इज बेसिकली बैंक का प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से आता है। सो रेवेन्यू आर प्राइमरीली वे ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन लोन्स एंड सर्विस चार्जेस फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो मेन component of revenue for the bank is the interest which it collects on various kind of loan it's given. और नॉन बैंक का प्राइमरीली फ्रॉम द वे ऑफ ट्रेडिंग। बैंक का मेजर एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो दैट इज द मेजर एक्सपेंस। और नॉन बैंक का एक्सपेंस होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और बैंक में हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ फंड इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So cost of fund is basically the interest rate which you have to pay for borrowing that money. So अगर for example I tell you कि saving account और fixed deposit में किसमें cost of fund ज्यादा है? Can you tell me? Saving account और fixed deposit में किसमें cost of fund ज्यादा है? हम सेविंग अकाउंट। No, उल्टा है। सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको? 2.5%, 3%, 4%? यस मैम फिक्स पैसा डबल हो जाता है। हाँ,
डबल ना भी हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट पे 6% 7% मिलेगा, राइट? तो बैंक के लिए कौन सा ज्यादा महंगा लोन हुआ? मैम फिक्स्ड वाला। Fixed deposit. So cost of funds is the interest rate which the bank has to pay on borrowing this funds. So borrowing in saving account is cheaper, and saving account और current account में कौन सा cheaper हुआ? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कौन सा चीपर हुआ? मैम मैम current करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। मैम इंटरेस्ट कितना पड़ता So cost of funds for current account is very less compared to cost of funds of fixed deposit, right? और नॉन बैंक में cost of goods sold होगा, is one most important matrix in manufacturing PLA में। So basically इससे आपको पता चल रहा है कि बैंक का रेवेन्यू कहाँ से आता है। बैंक का रेवेन्यू प्राइमरीली इंटरेस्ट से आता है और ऑल द सर्विस व्हिच इट प्रोवाइड्स। सो ट्रांजैक्शन एनालिसिस हम बाद में देखते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई पॉपुलेट बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक सो दैट वी अंडरस्टैंड how it is different than a non-bank. Okay. So can you see this balance sheet of Axis Bank? This is Axis Bank's balance sheet. Can you see it on the screen? Yes, ma'am. दिख रहा है, right? तो अब आप देखो इनका जो मेन लाइबिलिटी है, मेन लाइबिलिटी इज डिपॉजिट्स, नो? 9 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में आपका 6 लाख करोड़ is your liability by deposits. So that is the main difference of a bank balance sheet compared to a balance sheet of a business. So बैंक की बैलेंस शीट में जो मेजर लाइबिलिटी आप देख लो, सारी लाइबिलिटीज मिला के में देख लो, आपकी जो डिपॉजिट की लाइबिलिटी है वो सबसे बड़ी है, राइट? तो कैपिटल काफी कम है, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस से आपके प्रॉफिट से आता है, ये डिपॉजिट्स के फॉर्म में आया है, राइट? सो 6,40,000 crore इज द टोटल डिपॉजिट लाइबिलिटी। और थोड़ी ये बोरोइंग है, ये कैन बी फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, इट कैन बी फ्रॉम आरबीआई आल्सो। सो दिस इज द सोर्सेस ऑफ फंड। सो फॉर एक्सिस बैंक की 9,15,000 करोड़ की बैलेंस शीट में आपके 6,40,000 crore have come by the way of deposit. So these are the sources of fund. अब इन sources का किया क्या है एक्सिस बैंक ने? उसमें से necessarily they have to keep some money with the Reserve Bank of India, so that they have kept here. So cash and balances with RBI and banks money at call and short notice. So ये जो पैसा आया उनके पास आया है, उसमें से कुछ पैसा उन्होंने जो है रिजर्व बैंक के पास रखा है और कुछ पैसा दूसरे बैंक्स को लेंड किया है, राइट? Then they have made some investments, and if you look at the major component of
यूजेज ऑफ दिस फंड, तो ये मैंने बताया आपको, ये लाइबिलिटीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एसेट्स आर द यूजेज ऑफ फंड्स। तो ये जो फंड्स आए हैं उन्होंने उसका किया क्या है, दे हैव लेंट दैट इन फॉर्म ऑफ लोन। सो एडवांसेस बोल सकते हैं, क्रेडिट बोल सकते हैं, लोन्स बोल सकते हैं। तो आउट ऑफ द 9,15,000 crores they have invested 5,71,000 crores। ठीक है। फिक्स एसेट्स बैंक का जो है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस इज वेरी लेस। फिक्स एसेट क्या होगा, बैंक है, बैंक में जो कंप्यूटर्स है, सर्वर्स है, टेबल चेयर्स है, फर्नीचर है, वो फिक्स एसेट है। बट कंपेयर इट विद दी एडवांसेस, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कम है, यू नो, एंड अदर एसेट्स, राइट। So basically, if you look at the bank's balance sheet, is more about how much money they have accepted as deposit and how much money they have given out as loan. Okay. Yeah. Any other thing you want to understand in this, in the bank's balance sheet? So simple है balance sheet. बहुत ज्यादा items नहीं है. बैंक की बैलेंस शीट कितनी क्लीन है, ठीक है, राइट। क्या हुआ, सब लोग एकदम साइलेंट है, नो क्वेश्चंस ऑन दिस? हेलो, यस मैम, देख रहे हैं हम लोग। हाँ देख रहे हो, समझ में आया जो हम एसेट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं? यस मैम, आ रहा है। किसी और बिजनेस का आप उठा के देखना, यू जस्ट डू अ लिटिल रिसर्च, किसी और बिजनेस का उठा के देखना, देखना कितने सारे आइटम्स होंगे कंपैरेटिवली। उसमें बैंक में एकदम क्लीन बैलेंस शीट है। ज्यादातर पैसा जो है कहाँ पे है, एसेट्स में है। पैसा आया कहाँ से, डिपॉजिट से पैसा आया है और उसको हमने लेंड कर दिया है। सो दैट इज व्हाट इज द बैंकिंग बिजनेस। सिंपल बिजनेस है, तो सब लोग उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, बट बैंक का अगर आप देखो तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई स्किल ही नहीं चाहिए आपको, सिर्फ स्किल दूसरों के जेब से पैसा निकलवाने की चाहिए, और कोई स्किल ही नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक का सीधा सच्चा काम है, इधर से पैसा लो और इधर पैसा दे दो। इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में? कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है सिर्फ डिपॉजिट लिया, कुछ आरबीआई के पास रखा और बाकी लेंड कर। और मैम ये जो simple बिजनेस business की है। होती है वो बहुत बड़ी होती है। क्लास 12 की बुक में हम लोग की बैलेंस शीट थी, हाँ, जिससे हम हाँ। लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज में दोनों को पहले रखना पड़ता था, फिर सेव निकालनी पड़ती थी। वही मुझे याद आ रही है। तो एकदम सिंपल बिजनेस है बैंक का, यू नो। तो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं, बट यू नो being worked in a bank and you know understanding banking business, I think it is simplest of the business। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ दूसरों की जेब से पैसा निकाल के बैंक में लाना है और फिर उसको दूसरों को लोन दे देना है। यही है बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग है, बस यही काम है बैंक का। और थोड़ा सा, क्योंकि अब ऑब्वियसली डिपॉजिट पे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो आपको कस्टमर को और रेवेन्यूज बताने हैं जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर पाए, एंड दैट इज व्हाट बैंकिंग इज ऑल अबाउट। इट्स नो रॉकेट साइंस, सिंपल सीधा सच्चा काम है, सिर्फ पैसे से डील करना है। किस तरह से पैसे को हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं वही आपको कस्टमर्स को बताना है, क्योंकि वही काम है और कोई काम ही नहीं करता बैंक, कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, लोगों से डिपॉजिट लो, सोर्सेज ऑफ फंड, एंड देन लेंड इट आउट एज एडवांसेस। सिंपल। ये लायबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस मैम क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट से आएगा ना आपका, बिजनेस का जो सरप्लस हो गया। ओके, लेकिन मैम वो लायबिलिटी में फिर? लायबिलिटी तो है, ये किसका पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है ना। अच्छा, ये शेयर होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, राइट। मैम बोरोविंग में मतलब जो बैंक बोरो करेगी वो? कौन सा बोरोइंग, ये वाला ये हाँ, मैम जो बैंक ने बोरो किया होगा, राइट। जो बैंक ने बोरो किया होगा, दूसरे बैंक से भी बोरो कर सकता है, रिजर्व बैंक से भी बोरो कर सकता है, तो ये वो बोरोइंग है। राइट। और ये जो आप बोल रहे थे ना कि वो कहाँ रखेगा, क्या कहते हैं, एनपीए हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रोविजन बनाया हुआ है, यू नो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा
पैसा है, ये शायद इसमें से कुछ वापस ना आए, तो उसके लिए हमने एक प्रोविजनिंग बनाई हुई है। So this is how a balance sheet of a bank looks like. ये ऊपर जो है इनका नोट्स है, तो अगर टाइम हो आपके पास तो आप ये घर पे पढ़ भी सकते हैं एक बार, पर that is what it is. Okay, so that is how a balance sheet of a bank looks like. Okay, so now let us look at transaction analysis. मतलब जो भी transaction होगा उसको हम किस तरह से so accounting is not only about you know, noting down, it is also about summarizing. So how you will note down all these transactions is what we are going to see. So यहाँ पे एक कंपनी है which is the name of SoftBite, and it is run by Narendran. So Narendran decides to open a computer programming service. Okay. अब नरेंद्र ने ये किया है, so he'll have to invest some money. So he invests 15,000 cash in the business, which is which he names as SoftBite. तो इसको आप कैसे नोट करोगे, कहाँ नोट करोगे और कैसे नोट करोगे? नरेंद्र ने 15,000 कैश इन्वेस्ट किया है अपनी कंपनी में, तो इसका इसकी नोटिंग कैसे होगी? एनीवेज, एनीवन? मैम एसेट कॉमर्स वाले? मैम एसेट्स में होनी चाहिए। एसेट्स में होगी मैम। एसेट में होगी, पर एसेट और लायबिलिटी तो हमेशा सेम होता है ना, दोनों में होनी चाहिए। मैम एसेट्स में होनी चाहिए क्योंकि उसने खुद का पैसा लगाया हुआ है, खुद का पैसा लगाया और लायबिलिटीज में भी होनी चाहिए क्योंकि जो पैसा वो लगाएगा वो उसको खुद ही मिल रहा है। करेक्ट। तो Yes, ये ma'am. दोनों, इसकी नोटिंग दोनों में होगी। हमने देखा ना एसेट्स हमेशा लाइक एसेट और लायबिलिटी हमेशा सेम होते हैं। Same अभी होनी क्या है कि उसको कुछ पे नहीं करना है, ही हैज डिपॉजिटेड। सो सोर्स ऑफ फंड क्या है? सोर्स ऑफ फंड हो गया हमारा लायबिलिटी, और यूजेज ऑफ फंड इज एसेट। तो अभी हमारा सोर्स ऑफ फंड हो गया इक्विटी बाय नरेंद्र, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी में हम इसको इक्विटी की तरह 15,000 रुपए रखेंगे, और कैश में है तो अगर हमने इसको बैंक अकाउंट में रखा है तो हमको इसको बैंक अकाउंट में एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, अगर हमने इसको कैश में रखा है तो हमें कैश में दिखाना पड़ेगा। पर नोट दोनों में होगा क्योंकि अभी वो अभी यूजेज equal कुछ नहीं होगा। हुआ है, या रिसोर्सेज ऑफ यू नो यूजेज है, राइट? Yes, तो हम इसको दोनों में दिखाएंगे। तो हम ओनर्स कैपिटल में दिखा रहे हैं उसको 15,000 रुपए एज नरेंद्र's कैपिटल। ओनर्स इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ आवर लायबिलिटीज, एंड एसेट है, ये कैश में है तो ये हमारा एसेट है। So there is an increase in the asset of cash of 15,000 rupees and an equal increase in owner's equity of Narendra's capital. So ये हमारा 15,000 टैली कर रहा है, right? Okay. Now tell me, आप इसको कैसे दिखाओगे? SoftBite purchase computer equipment for rupees 7,000 cash. तो अकाउंटिंग में एक चीज और हमको देखनी है कि हमेशा दो ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका दो लेग होता है, इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, ठीक है? तो अब इसका हम ट्रांजैक्शन कैसे दिखाएंगे? SoftBite परचेज कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000 रुपीज कैश। अच्छा, 7,000 रुपीज कैश होगा तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे 15,000 कैश है तो इसको क्या हो जाएगा? 7,000 लेस। 7,000 लेस हो जाएगा, और ये 7,000 जाएगा कहाँ? मैम फिक्स्ड एसेट में। फिक्स एसेट में जाएगा, करेक्ट। तो आपका फिक्स एसेट जो है, हाँ, जो आपका फिक्स एसेट है दैट वुड इंक्रीज। लायबिलिटीज को कुछ नहीं होगा क्योंकि 15,000 उसने दिया है, वो चेंज नहीं हो रहा है।
पर एसेट में आपका कैश एसेट अब सिर्फ 8,000 बचेगा, क्योंकि 7,000 का आपने कंप्यूटर ले लिया है। तो कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स है, तो इट विल गो इनटू फिक्स एसेट्स, बट अगेन योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन सेम। Okay. So you have bought, cash will decrease by 7,000 and asset of equipment is increased by 7,000. 7,000. तो 7,000 ये हो गया और इक्विपमेंट हमारा इंक्रीज हो गया तो 7,000, पर हमारा लायबिलिटी सेम है क्योंकि अभी नरेंद्र ने कुछ पैसा वापस नहीं लगाया है, राइट? तो अगेन आवर लायबिलिटी एंड एसेट्स आर टैलिंग. Now, software purchase, computer, paper and supplies expected to last several months for ABC company for 1,600 on account. ठीक है, अभी इन्होंने ये पैसा दिया नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट ऑन अकाउंट खरीदा है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका क्या इफेक्ट होगा? एसेट में होगा या लायबिलिटी में होगा? मैम दोनों में। करेक्ट, दोनों में होगा। 1600 लायबिलिटी करेक्ट और करंट। यस, तो हमारा क्या होगा? 1600 हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। तो बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक अकाउंट पेबल, एक अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब जो पैसा मुझे आना है, पेबल जो मुझे पैसा पे करना है। तो अभी हमने ये अकाउंट पे खरीदा है, हमने ये पे नहीं किया है, तो मेरी लायबिलिटी 1600 रुपीज से बढ़ जाएगी और साथ में ही मेरा करंट एसेट भी 1600 से बढ़ जाएगा। Yes, ma'am. राइट? सो अगर आप देखो यहाँ पे हमारा करंट एसेट बढ़ गया, सप्लाई 1600 और हमारी अकाउंट पेबल लायबिलिटी भी बढ़ गई। सो द एसेट सप्लाईज इज इंक्रीज बाय 1600 and the liability account payable is increased by the same amount. So basically हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके दो इफेक्ट होंगे, राइट? हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन के आप देखोगे तो दो इफेक्ट होंगे और वो हमें दोनों लेने होंगे, तभी आपका ट्रांजैक्शन बैलेंस होगा। Ma'am, means both side have equal value. Yes, they will always have equal value. Your liabilities will always be equal to assets. और जिन्होंने कॉमर्स किया है उनकी जिंदगी इसी में खर्च हो जाती है ना कि हम इसको टैली कैसे करें, हमारा एसेट लायबिलिटी के बराबर कैसे होगा। Yes, तो ma'am. यही है ना, यही चीज है कि जब बेसिकली वही चीज है कि जितना पैसा आया है उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, और अगर कुछ आया है तो उसको क्या किया है आपने वो आपको दिखाना पड़ेगा, right? Okay, now this transaction, Softbyte receives 1,200 cash from customers for programming service it has provided. तो ये कहाँ पे जाएगा, कैसे इसको नोट करेंगे आप? कैश में जाएगा, एसेट में। करेक्ट, और दूसरा ट्रांजैक्शन लेस होगा और मैम इंक्रीज हो जाएगा और अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। हाँ हम कैश में इंक्रीज हो जाएगा, ये 1200 प्लस हो जाएगा। यस, और साथ में आपके ओनर्स इक्विटी में भी बढ़ जाएगा ना। दो हमेशा दो इफेक्ट होंगे, तो कैश में बढ़ गया है ना, और सिमिलरली आपका ओनर्स इक्विटी में ये ऐड हो गया। Hello. यस, हाँ, यू वांट टू से समथिंग? तो ये कैश आया तो दो अगेन इट इज अफेक्टिंग टू लेग्स। वन इज कैश ऐड हो गया और दूसरा क्योंकि ये नरेंद्र कैपिटल में सिंगल बिजनेस है तो नरेंद्र के कैपिटल में भी ऐड हो गया। सो कैश इज इंक्रीज बाय 1,200 and Narendra capital is increased by 1,200. So again your liability and assets are tallying. Okay. Now Softbyte receives a bill of 250 for advertising its business
but pays the bill on later date. ये कैसे आप दिखाएंगे? मैम ये मैम, अकाउंट पेबल में जाएगा लायबिलिटीज में? अकाउंट पेबल में आ जाएगा लायबिलिटीज, है ना? और ये ऑब्वियसली नरेंद्र के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो दो ट्रांजैक्शंस होंगे, एक तो अकाउंट पेबल में आएगा, पर आपका एसेट किसी तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, इसका कोई एसेट पे असर तो पड़ नहीं रहा है। 250 रुपीज यू हैव स्पेंट, सो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है, एसेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर देन यू विल हैव टू मेक द एडजस्टमेंट इन द लाइबिलिटी साइड इटसेल्फ। सो जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फॉर एग्जांपल जब हमने कंप्यूटर लिया था, राइट, तो हमारी लाइबिलिटी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, सिर्फ एसेट ही चेंज हुआ था, फ्रॉम कैश इट चेंज टू द कंप्यूटर, राइट। तो दोनों हमने एसेट पे ही दिखाए थे, और यहाँ पे इसी तरह से इफ यू लुक एट इट इज ओनली अफेक्टिंग द लाइबिलिटी, सो यू विल हैव टू एडजस्ट इन द लाइबिलिटीज। सो अकाउंट पेबल 250 हो गया, और नरेंद्र के कैपिटल से ये 250 माइनस हो गया। So account payable is increased by 250 and Naren capital is decreased by 250. So again, your assets and liabilities are the same. Okay. Now, software provides programming services for 3,500 for customers and receives cash of 1,500 with the balance payable on account. तो अब इसको कैसे दिखाएंगे आप? मैम जो 1500 है वो एसेट्स हो जाएगा। हाँ, और बाकी 2000 कहाँ जाएगा? मैम लाइबिलिटीज में, मैम लाइबिलिटीज में नहीं, क्या है वो? अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है? मैम अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है? मैम लाइबिलिटी। मैम लाइबिलिटी अकाउंट, सॉरी नॉट अकाउंट पेबल, हाँ अकाउंट पेबल तो लाइबिलिटी होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? मैम एसेट्स। एसेट्स होता है, तो ये एसेट में जाएगा, है ना? ओके, और यहाँ पे नरेंद्र कैपिटल में जाएगा ऑब्वियसली। तो कैश 1500 आपने कैश मिला है, तो 1500 कैश में जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल में आपका 2000 जाएगा, और पूरा एफर्ट आप उसको फिर यहाँ पे नरेंद्र कैपिटल में दिखा दोगे फॉर, बिकॉज दिस इज द सर्विस रेवेन्यू फॉर नरेंद्र। सो बिकॉज 1500 ही कैश में आया, तो सिर्फ 1500 आप कैश में दिखाओगे, और अकाउंट रिसीवेबल में 2000 दिखाओगे। सो कैश इज इंक्रीज बाय 1500, account receivable is increased by 2000, and Naren capital is increased by 3500. So now the thing is that like the number of transactions can be different, but the amount always has to be the same in both the assets and liabilities. Okay. Now how will you show this? Expenses paid in cash from September and store rent 600, 900 and 200. So these are the expenses which has been incurred. तो कैसे दिखाओगे वो आप? मैम ये अकाउंट पेबल में जाएगा में, और मैम नरेंद्र कैपिटल में से डिक्रीज पे कर रहे हो, अकाउंट पेबल में नहीं, कैश में पे कर रहे हो। अच्छा मैम, ये फिर कैश से डिक्रीज होगा, कैश से जाएगा, करेक्ट, इट विल डिक्रीज हो जाएगा नरेंद्र कैपिटल से। यस, करेक्ट करेक्ट, राइट। तो इसका अगेन इफेक्ट होगा, आप इसको कैश से यहाँ माइनस करोगे, और यहाँ नरेंद्र कैपिटल से माइनस करोगे। सो कैश इज डिक्रीज बाय 1700 एंड नरेंद्र कैपिटल इज आल्सो डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। सो हमने देखा था ना, जो हमारा ड्राइंग है वो हमेशा कैपिटल से जाएगा, तो यहाँ पे कैश तो डिक्रीज होगा, एंड करस्पॉन्डिंग एफर्ट वुड बी ऑन नरेंद्र's कैपिटल। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? कैश से डिक्रीज होगा तो हम कैश से एंड नरेंद्र कैपिटल से कैश से डिक्रीज होगा। करेक्ट, ये कैश से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने पहले ही इसका प्रोविजन बनाया हुआ था ना, अकाउंट पेबल, तो यहाँ से भी ये हट जाएगा क्योंकि ये 250 इज बीइंग पेड। So cash is decreased by 250 and account payable is decreased by the same amount. Okay,
So sum of 600 is received from customer who has previously been billed for the in transaction 6. So transaction 6 मैम में अकाउंट रिसीवेबल में मैम जाएगा कैश मैम account अकाउंट receivable. रिसीवेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल में लेस हो yes, जाएगा। और account receivable से decrease हो जाएगा. Correct. So cash is increased by 600 and account receivable is decreased by the same amount. यस मैम So let us see the last transaction for today and then we will. So transaction 10. Now Narendra withdraws 1300 in cash from business for his personal use. तो इसका इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे? हम मैम 1,300 कैश में से से लेस होगा। कैश कम हो जाएगा और कहाँ से less होगा? कैपिटल से हम नरेंद्र कैपिटल से भी लेस नरेंद्र कैपिटल से लेस हो जाएगा। Correct. So cash is decreased by 1300 and Naren capital is also decreased by the same amount. So that is the transaction relationship. ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको? तो डरो मत, नॉन कॉमर्स वाले डरो मत, ऐसा कुछ आपको बैंक में नहीं करना पड़ेगा. This we have just done to understand how accounting is done. Banks have softwares जिसमें आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन का डिटेल एंटर करना है. बैंक अपने मतलब सॉफ्टवेयर विल डिसाइड कि डेबिट करना है या क्रेडिट व्हाटएवर. तो इसमें आप कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है. सो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन एंटर करना होगा. तो डोंट वरी, बट बहुत सिंपल है. इट इज simple logic, plain logic. So sometimes people ask, I often tell people कि बैंक में काम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए. चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉमन सेंस है तो आप बैंक में काम कर सकते हो. तो इसमें भी कॉमन सेंस लगाना है कि कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ जा रहा है. तो आपको दोनों चीजें दिखानी है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है. एक चीज नहीं दिखाओगे तो अकाउंट्स में प्रॉब्लम होगी. अगर सिंपली सारे अकाउंट्स दिखाते रहोगे कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, तो अकाउंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, so with that we will end today's class and tomorrow again we will continue with understanding accounts. In the meantime, if you have any questions or something, you can ask. Anyone? नो मैम. Okay, chalo, bye bye, we'll meet tomorrow then. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।